It is really heartening to see that young students like you are keen to join the government departments. Am I audible to you? Yes, sir. Fine, fine. Okay. So, थोडासा तुझं फक्त इंट्रोडक्शन थोडा सेल्फ इंट्रोडक्शन एकदा देऊन टाकशील. right. हा म्हणजे मी तर दिलेलंच आहे. It is, to be very frank, it is very essential that young children, young students, youth with new ideas, with new views, with new potential, join the administration and replace the old blood. Means, as we all know, there should always be rejuvenation. Old should always get replaced by new things. So it's really heartening for me that you all are keen to join the government services, government administration, and you all are taking efforts for getting into this bureaucratic system. I have, as Mangesh shared, that I had completed my graduation in dental surgery. Even when I was in college pursuing my BDS, in the final year itself, I had planned not to continue with my profession, and I had decided to continue and to pursue the UPSC civil services. My disadvantage was that, means right now I'm feeling somewhat at a disadvantageous position rather than you people, because it was at the age of 24 I realized that there is something beyond the regular courses, regular degree courses, professional courses, which are necessary both for the society as well as for the nation. But I'm seeing many young faces who might just have means passed out 12th or so and recently joined the college. Yes, when you get this information at an early age, you are in the advantageous position since beginning. Means the people like me who get to know what are the civil services, what is UPSC, what are state services at the age of 24, 25, I think I have already lost my precious 4 to 5 years. I could have utilized those college days for preparing, for knowing more about these services, how the state government department works, how a central government department works, what are the different scenarios, what are the different dynamics in both the departments, how they are handled, what is the coordination, governance issues, political interference, all those issues. Means the more younger age at which we get introduced to all these things, the more matured decision we are in a position to take. So right now आप बड़े ही advantageous position में हो, शायद हम उस वक्त उस advantageous position में नहीं थे. So at the final year, after the final year, I started preparing during my internship itself. Because of my preparing for the SIC exams, Nagpur, I could not give much attention to my patients in the hospital. So even my internship was delayed for 6 months. My sir, my HOD, who has delayed that internship, he is still in touch with me. Now, the thing is that means it's really good that institutions are now approaching you. Means the academies and the professionals like Mangesh Borkar, they are approaching students at the right age, at the right stage, so that students do not do the same mistakes which we have done. Mind me, we have lost very precious years, and it was very difficult for us to start
at the age of 24 and 25 for preparing civil services. Means after investing our 5 years, 5.5 years in medical and dental professions or engineering professions, switching from entire that background to this background, yes, it is very what I will call a very rough transition. So you are really I think fortunate that you are having a dialogue with the professionals and with the educational institutions at the right age, at a very right age. Why I'm saying this? Because means maybe my thinking patterns when I was at your age were entirely different, and you all of you are having individual mindset with your individual orientation, with your individual opinions. Now it is not I cannot, or no one cannot expect that whatever we were thinking at your age, the same thought process should be going on. No, it should never happen. It should never happen like that. When me, myself and Mangesh, we met at that SIC, State Institute for Administrative Career in Nagpur. Yes, we were already late. Still, we were sharing our hostel rooms together. We were preparing. We were giving our mains. I think first mains we have given from Bhopal. 2004. And yeah. Even I can recall that Mangesh had scored more better than me at that time, in history particularly. now later on, and even during those study period and even during those hostel days, we were very seriously discussing about the issues faced by the society, faced by the country, faced by different sections of the people, the various social evils, the administrative bottlenecks, and there was a thought process in the back of our mind that yes, it is means just qualifying an exam is not a big deal, but what you plan, what you think, what you do after you occupy that chair, after you go and sit in that office, yes, I think the changes which you bring when you occupy the post, that can be said to be a substantial achievement. Means let me frame it in other words. Dreaming of qualifying an examination is not at all a big dream. If you wish to dream, you just dream that what changes you wish to bring when you go in a particular setup. What changes you intend to bring when you reach there. What are the wrong things you have identified? What wrong things which you intend to put a full stop, and what corrective measures can you suggest right now when you are still in the studying phase? Means when you are preparing your notes for this UPSC, at the end of your notebook, there should also be a rough page on which you should be scribbling that what is wrong with this administration, what is wrong with this department, what changes are required in this department, how better can you make this department, what are the problems faced by the people which are overlooked and ignored by the administration, where an officer has taken a wrong decision, and were you in his position at that particular time, what decision would you have taken? Means all these things should be at that last page of your notebook. That will ensure that an officer is in making. An officer is in making. It is not that you as a student are preparing. Means I am not seeing Umesh Meshram as a student preparing for UPSC. I am not seeing Samhita More. I am not seeing Vivek Khedkar or Aditya Ropade as a student preparing for civil services. I am seeing future officers who are readying themselves, who are putting all the weapons and arms in their armory so as to face this country, so as to face the problems of the people, and so as to bring a relief to them.
I am seeing all the budding officers before me who are just ready to step in this administration. So later on, it was maybe for Mangesh, it was a very tough decision to go and create an institution where more humanitarian, more sensitive, more sympathetic officers will be created for serving this nation. Yes, yes. What means at that time also we were conquering on this, that the administration which we see now, or which we were seeing during those times, it was not that much humane, it was not that much sensitive, it was not that much sympathetic to the problems of the people, it was not responsive, and it is not like that they do not wish to help the people, they also wish to help the people, but there are some hindrances, there are some bottlenecks, particularly the quantum of pressure work which every employee in the state government or central government has to face, right from the clerk to the officer. The sheer quantum of that workload itself is a very large burden on that particular employee to deal with. Now what means in such period, particularly the era after the liberalization or what we call privatization, there might be many thoughts, there might be many suggestions you might be getting, that now the government sector is shrinking, it is contracting, and there are not more opportunities left in the government department, so it is better to try for some big private corporate job. Okay, maybe this, you might have heard this thing a lot of times from the people. This is some sort of erroneous belief, this is some sort of incorrect interpretation of things which we are seeing. What is actually happening since privatization, or since the era of liberalization? Government is focusing more on the essential areas, and so as to focus more on the essential areas, it is trying to relieve itself from those areas which are not required by government to do so. Means there are some things which are essentially required to be done by the government, like your medical, your health, your housing, education, poverty, employment, public utilities, power generations, defense. These are some of the essential areas which are the core areas for the government, which need a focused approach. Now, let me give you an example. Have you heard about Maruti cars? You might definitely heard about Maruti cars. Now, did you know that Maruti cars, this company was a public sector undertaking? It was a central government company. Man, it was a government company, it was a central government undertaking, public sector undertaking, which was manufacturing car in the decade of 1970s. अब मुझे ये बताइए 1970s में जब भारत में इतनी गरीबी थी, we were facing the food grain scarcity, खाने के लिए अनाज जो है हम बाहर के देशों से इंपोर्ट कर रहे हैं, we were facing communal issues on one hand, we were facing some serious threat to the democratic elements. In such a scenario, a government company is busy in manufacturing cars. Does it make sense? कि यहाँ पर इंडिया में इतने सारे इंपॉर्टेंट इश्यूज गवर्नमेंट के सामने पड़े हैं और गवर्नमेंट क्या कर रही है? गवर्नमेंट कार बना रही है, कार मैन्युफैक्चर कर रही है.
In the same way, HMT watches, HMT कंपनी, ये भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कंपनी थी, घड़ियां बना रही थी ना। अभी मुझे बताइए, क्या ये गवर्नमेंट का बिजनेस हो सकता है, कार बनाना, घड़ियां बनाना? इवन फॉर दैट सेक, सिम कार्ड्स बनाना, मोबाइल बेचना, as what BSN is doing right now. Whether it should be a business of a government to sell mobiles, to sell SIM cards, to sell cars, to manufacture your watches, no. So these were the areas which were not required by the government to look after, and that is why slowly these public companies, these government owned companies, they were privatized. It was a conscious decision that okay, we need not to focus on these areas because these are not the priority areas. Let us focus upon the priority areas. Let us put the man force, let us put the funds in those areas which are having priority right now. So that's why we are seeing that Maruti was later on privatized, HMT was privatized, and now in the same way, Air India, whether government means, now government has taken a decision to privatize Air India. If any one of us asks a questions, or if anyone asks me what is more important for a government to focus upon, means what the priority areas which we see right now is even taking electricity to the villages, making roads in the villages, even availability of drinking water. Forget about villages. Even in the city areas, we are not getting good, healthy, hygienic drinking water. A very common problem faced by even the citizens of urban cities. Now, when these problems, these larger problems are looming ahead before us, whether really government should worry about how to fly planes, who should be the pilots, who should be the crew, and what should be the fare of that travel. I don't think so. I don't think so. These are not the essential needs. These are not serving the larger interest of the society, larger interest of the country. So all the things which are not essential for the public, for the larger interest of the society, were being privatized. Now, government companies were privatized. Have you ever heard that a government department was privatized? No, because a government department cannot be privatized. Department stays. Department always stays. Government always stays. Only the companies, only the what we call commercial entities which are created by the government, they can be dismantled. They can be privatized. Government departments cannot be privatized. So what you will be seeing is there are a whole lot of more departments now than it were present in 1990s. 1990 में जितने भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स थे, आज उससे ज्यादा गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स है। 1990s में उस वक्त इंडियन इंफॉर्मेशन सर्विस ये नहीं थी। इंडियन इंफॉर्मेशन सर्विस अभी है। It means that those cadres officers were not there earlier. Now there was a need to create a cadre catering to that particular service. So government departments, they are expanding, they are increasing wherever there is a need. Wherever government feels that we need to create a specialized setup to cater to a particular need, okay, then it takes a decision to set up a different department. Now, what I want to convey is the government area, the government setup is not shrinking, the government setup is not contracting, it is expanding.
It is expanding. Secondly, what is the difference between getting a job in government department and getting a job in private sector? In both you will be getting salaries. If you are in a multinational company and at the top management level, maybe you are getting you will be getting more salaries than any class 1 officer like me. Okay, but what is the core difference? The core difference is that the person working in a private employee, he is not involved in governing the country. The person engaged, employed in a private company, industry, corporate sector, he is not involved in running the country. He is not involved in governance. He is not involved in taking public decisions. Now, means if you are taking a decision in a private company, what you are basically doing? You are increasing the business of that particular company. Now, when you are taking a decision in a government department, what you are doing? You are redressing the problem of the people. You are processing the problem of the people. You are disposing the problems of the people. You are creating new ideas. You are creating new avenues in bringing these services at the doorsteps of the people. You are by your decision making in a government department, you are either means if it is a good decision, you will be helping whole lot of your countrymen, and if you are taking a wrong decision, you will be creating a problem for a whole lot of countrymen. So being a part of government setup means you are actually involved in governance of this country. You might have seen many people who say that यार ये सिस्टम बड़ी बेकार है और ये सिस्टम को बदल नहीं सकते. And whenever any individual goes to a government department, be it state government or central government, and if he is not being received well, if he is not being responded well by that concerned officials, after coming from that office, what is his response? What is his opinion about a government setup? यार ये गवर्नमेंट सेटअप कुछ काम का नहीं होता, कुछ काम तो करते नहीं है, उल्टा पेपर वर्क बढ़ा देते हैं और माल प्रैक्टिसेस में एंगेज होते हैं. नाउ ये इस तरह का जो ओपिनियन बनाने वाले लोग हैं, उनका ओपिनियन जो बनता है ये हमारी वजह से बनता है. मीन्स द वे इन विच आई एम रनिंग माई ऑफिस, द वे इन विच आई एम एक्सटेंडिंग माई सर्विसेज आउटसाइड, the way in which I am dealing with the queue of the people. Right now in Maharashtra, okay, I had not shared in which particular department I am working. I am working under Labour Ministry of Central Government, that is Government of India. Under this Labour Ministry, we have one department or organization, that is Employees Provident Fund Organization. What we basically do is we work for the labor welfare. It is a labor-oriented department where we provide all the workers who are engaged in the private sector. We provide provident fund benefits. We provide pensionary benefits to those workers, particularly those poor workers who may not have any source after they are old, who may not have anything to depend upon after they get old. So to such poor families of workers, we are providing the provident fund benefits and the pensionary benefits. And let me tell you right now, means most of the workers which we are dealing with, these workers, they belong to the poor socio-economic strata, and they
they rely, the entire family waits for the monthly pension which my office releases to them. The minimum pension right now which government has formulated is rupees 1000 to these people. So at least minimum 1000 pension we have to provide to all these poor families of the workers. Now you might think, what does this 1000 means? How can a family survive on this 1000? But let me tell you, it is this sum of money for which the people are waiting for the whole month. Means I have shared my mobile number to the public. Whole day I am getting at least more than 200 messages that this much amount of pension has not yet received to me in my bank account. And means it is very painful for me to hear that even this poultry sum I am not able to, if I am not able to deposit in the workers' accounts, then why the hell I am sitting here? The question is, why Hemant Tripude is sitting here then? If he is not able to do the job for which he is being posted, for which he has qualified that UPSC examination. Now, what has happened actually, at the end of the year, every worker, means every pensioner who is getting pension, he has to submit his life certificate through a biometric mechanism, which is an Aadhaar enabled mechanism. Means he has to punch his thumb on that Aadhaar enabled software, which confirms that that worker, that pensioner is alive, and he has to be sent pension for the next year also. So for most of the time, what happens? The workers, because they are illiterate or because they are so much grossly engaged in their works, they do not find time to go and do this life certificate registration. So they had to do it in the month of November, December, but they didn't do it till March. And what happened after March? The lockdown was implemented. So lockdown was implemented, workers were forced, we all were forced to remain in our houses for our own safety. And in such a situation, the workers were not able to update their life certificates, because they were not able to update that, because all the Aadhaar based system was shut down. Because the corona infection, there is a risk of spreading the corona infection by the thumb imprints also. So all the Aadhaar based devices were shut down, and these workers, they were not able to register themselves as alive, and their pension was stopped. So what we did is, we just formed a Mangesh, do you want to share something? नाही, थोडं मध्ये मध्ये हिंदी होऊ दे, म्हणजे थोडं Okay. मुलांना समजण्यासाठी थोडंसं. काही गोष्टी मला वाटतं की कोणाकोणाला काही गोष्टी कळणार नाहीत थोडं. त्याच्यामुळे हिंदी मध्ये थोडासा. थैंक यू. यस, कैसा है, अभी जो लोग अभी तक के मार्च, अप्रैल, मई तक के भी अपना लाइफ सर्टिफिकेट जमा नहीं कर पाए, तो उनको 5 महीने से पेंशन नहीं मिल रही थी. सो अ सिंपल मैकेनिज्म व्हाट आई हैव सजेस्टेड देम, कि आप आपका सेल्फी निकालो और मेरे व्हाट्सएप नंबर पे भेज दो. आपका सेल्फी निकालो, आपका पेंशन ऑर्डर नंबर मुझे बताओ, आपके सेल्फी के बेसिस पर वी विल कंफर्म दैट यू आर अलाइव एंड आई विल बी रिलीजिंग द पेंशन. सो ये 2-3 महीने से एटलीस्ट ऐसे 2,500 से 3,000 वर्कर्स है जिनकी पेंशन हम रिलीज कर पाए, जो कि दिसंबर से विथहोल्ड थी. अभी भी कोई भी ऑफिसेस में पेंशनर्स जा नहीं रहे हैं, जा नहीं पा रहे हैं, बिकॉज उनके पास अभी साधन नहीं है, ट्रांसपोर्टेशन अवेलेबल नहीं है, आधार बेस्ड सिस्टम इनेबल नहीं हुई है, और मोस्टली जो इंटरनेट पर लाइफ सर्टिफिकेट अपलोड करने का भी एक जरिया है, लेकिन ये वर्कर्स इतने इलिटरेट और पुअर होते हैं, दे आर नॉट एबल टू एक्सेस द इंटरनेट. नाउ वी वर टॉकिंग अबाउट, हम बात कर रहे थे कि प्राइवेट सेक्टर में डिसीजन लेना और गवर्नमेंट
डिपार्टमेंट में डिसीजन लेना, दोनों में क्या अंतर होता है. दिस इज द डिफरेंस. दिस इज द डिफरेंस विच you will be making when you are occupying the गवर्नमेंट पोस्ट. ये डिसीजन, ऐसा कोई भी अच्छा डिसीजन लेकर आप यू कैन इन्फ्लुएंस, यू कैन जस्ट क्रिएट अ स्माइल ऑन द फेसेस ऑफ सो मेनी पीपल जस्ट बाय डूइंग योर जॉब, डूइंग योर ड्यूटी, डूइंग योर कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी. ये means acha, I was also told to talk about the various opportunities in the state governments and central government. अगर मैं personally बताऊं तो I prefer the work culture of central government. इसलिए नहीं कि मैं खुद सेंट्रल गवर्नमेंट को बिलोंग करता हूं, इसलिए कि मैंने स्टेट गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स और मेरे जो बैचमेट्स है या मेरे जो कलीग्स है उनको भी वर्क करते हुए देखा है. अगर कंपैरिजन किया जाए तो स्टेट गवर्नमेंट ऑफिसेस ये ज़्यादा ओवरबर्डन्ड रहते हैं. स्टाफ शॉर्टेज दोनों जगह पे रहता है, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट्स में ज़्यादा स्टाफ शॉर्टेज रहता है. दे हैव टू डील विथ होल लॉट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स. एक आपको ये तो पता होगा, मीन्स यू आर ऑलरेडी इन द मोड ऑफ स्टडिंग एंड प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विसेज कि स्टेट गवर्नमेंट्स को फंड्स बड़े कम मिलते हैं. फाइनेंशियली स्टेट गवर्नमेंट्स आर नॉट दैट मच फाइनेंशियली independent or resourceful. They have to depend on revenues from the center. सेंटर से फाइनेंसेस के लिए उनको बहुत बार डिपेंड होना पड़ता है. सो आप अगर मीन्स अल्टीमेटली आपको स्टेट गवर्नमेंट या महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस कमीशन या यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, दोनों का मोर और लेस आई थिंक जो सिलेबस काम पैटर्न या सिलेबस है, ये द डायरेक्टर मंगेश बोरकर माइट हैव वेरी वेल एक्सप्लेन टू यू. मैं केवल ये शेयर करना चाहूंगा कि irrespective, either you work in state government or either you work in central government, yes, you have to deal with the same people. The people will be remaining the same. The decision making process, particularly the decision making process in state governments जो है उसमें if you are particularly involved in administrative career, that is IAS, in IPS, in these areas, and even all other posts which are being recruited through MPSC, there is some political intervention. More political intervention is there at the state level jobs rather than central government. ये इसलिए भी है क्योंकि दोनों को साथ में मिलकर डिसीजन लेना होता है, ऑफिसर्स को और जो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स है उनको, एंड बोथ ऑफ देम आर एक्सपेक्टेड to take decision in the welfare of the citizens. जहां पर आपको लगता है कि कोई भी जॉब यानी स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट की कोई भी अपॉर्चुनिटी, भैया लेट मी टेल यू वन थिंग कि ये जो रिक्रूटमेंट्स है, ये जो अपॉर्चुनिटीज है, इट इज एन अपॉर्चुनिटी फॉर यू not only to earn but to serve the country, to serve the society, and to change the outlook of the people. का आउटलुक यानी जो कहते हैं कि ये सिस्टम बदल नहीं सकती है, ये सिस्टम जो है इसी तरह से चलती रहेगी, ये बोलने वाले जो लोग हैं इनको हमें अगर गलत साबित करना है तो आपको यहाँ पर आना पड़ेगा और सिस्टम को इम्प्रोवाइज करके दिखाना पड़ेगा. यानी बहुत बार जो यानी यहाँ पर सोलापुर में बीड़ी वर्कर्स बहुत है, बीड़ी कंपनीज बहुत है, 40 यानी एटलीस्ट 60 से 70 हजार बीड़ी वर्कर्स है.
यानी ये वर्कर्स, इनको भी समझ में आता है कि स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट में क्या डिफरेंस होता है। तो वो बहुत बार मुझे खुद होकर शेयर करते हैं। यहाँ पर मैं हर मंडे को लोक अदालत कंडक्ट करता हूँ, तो सभी पब्लिक से मिलता हूँ, इन वर्कर्स से मिलता हूँ। तो बहुत बार वो मुझे शेयर करते हैं कि सर आपके ऑफिस में हमें काफ़ी अच्छा लगता है, जबकि हम दूसरे ऑफिस में जाते हैं तो वहाँ पर हमें ये दिक्कतें आती है, हमें लोग ठीक से अटेंड नहीं करते हैं, हमें सुनते नहीं हैं, हमारे साथ रूडली बात करते हैं। तो when you are able to handle and manage your office properly, it is the direct feedback from the people which will tell you. ऐसा नहीं है कि केवल अच्छी बातें ही मुझे बताई जाती है, कहाँ कहाँ पर मेरे ऑफिस में गलत हो रहा है मैं ये भी पूछता हूँ, डायरेक्टली उन वर्कर्स से पूछता हूँ कि क्या आपको डिफिकल्टीज फेस हो रही है, कहाँ पर आपको लगता है कि और इम्प्रूवमेंट्स हो सकते हैं, ऐसे कौन से ऑफिशियल्स है जो आपसे ठीक से बात नहीं करते हैं। ये सारी चीजें when you talk with the people, आप जब उनसे बात करते हैं तब आपको ये एक अंदाजा आ जाता है कि हाँ, आप जिस तरह से ऑफिस को रन करना चाहते हैं उस तरह से वो रन हो रहा है या नहीं हो रहा है, या आपका स्टाफ, आपके ऑफिशियल्स केवल आपको जिसको हम कहते हैं रॉन्ग फीडबैक दे रहे हैं। सो फीडबैक coming directly from the people is more important to evaluate how you are functioning, how a government department is functioning। और ये जो आउटलुक है, ये आउटलुक लोगों का हम पॉजिटिव कर सकते हैं, और ये हमें करना ही होगा क्योंकि हम यहाँ पर लोगों को, वर्कर्स को उनकी सर्विसेज ज़्यादा अच्छे से प्रोवाइड करने के लिए आप भी पढ़ाई कर रहे हो और मैं भी यहाँ पर काम कर रहा हूँ। हम दोनों का उद्देश्य एक ही है, हम दोनों के ऑब्जेक्टिव्स एक ही है। ये केवल जब आप एग्जाम मोड में है या प्रिपरेशन मोड में है, ये आपको तब रियलाइज नहीं होगा। अच्छा, एक चीज और शेयर करता हूँ। एट प्रेजेंट आपको लगता होगा कि आपको दिन रात पढ़ाई करते रहना पड़ रहा है, बुक्स, टॉपिक्स, उसके बाद बाकी आपका आउटिंग्स बंद होगा, टीवी वगैरह बंद होगा, सोशल मीडिया बंद होगा, और आप बड़े ही अपने आप को दुखी महसूस कर रहे होंगे, बड़ा अपने आप को स्ट्रेस्ड महसूस कर रहे होंगे। अगर ऐसी कोई बात है तो मैं आपको बताता हूँ कि अभी आपके स्टडीज का दौर, आपकी प्रिपरेशन का दौर, ये बड़ा अच्छा दौर है। अगर ये आपको स्ट्रेसफुल लग रहा है तो ये आपको मैं बताता हूँ वो बिल्कुल भी स्ट्रेसफुल नहीं है। आप बड़े ही फ्री एटमॉस्फेयर और फ्री माइंड से अभी पढ़ रहे हो। आपको रियल स्ट्रेस जब आप उस कुर्सी पर आकर बैठोगे तब से आपका रियल स्ट्रेस शुरू होने वाला है। यहाँ पर आकर आपको रियलाइज होगा, अभी भी यहाँ पर बैठे बैठे मुझे लगता है कि जब मैं और मंगेश हॉस्टल में थे तब कितने खुश रहते थे और तब हम कितने अच्छे से एंजॉय करते थे। ये स्ट्रेसफुल लिविंग जो है ये भी हमारे पार्ट का हिस्सा बन जाता है। लेकिन स्ट्रेस प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी टेंशन जो है, कोई भी बर्डन जो है वो प्रॉब्लम नहीं होती है, स्ट्रेस प्रॉब्लम नहीं होती है, दुनिया की कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। हम उस स्ट्रेस को, हम उस टेंशन को, हम उस बर्डन को किस तरह से डील करते हैं, हमारा एटीट्यूड क्या है उस बर्डन की तरफ, उस स्ट्रेस की तरफ, वो ज्यादा मायने रखता है। अगर टू पुट इन वेरी सिंपल वर्ड्स, कोई प्रॉब्लम आपके करेज से बड़ी नहीं है। कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी बर्डन, कोई भी स्ट्रेस, आपके पास जो करेज है, आपके पास जो कमिटमेंट है, उससे बड़ी नहीं है। होता क्या है, प्रॉब्लम अगर छोटी है तो भी आपको बड़ी नजर आएगी। अगर आप अपने आप को लेस कमिटेड फील करोगे, आप अपने आप को लेस करेजियस फील करोगे, तो बड़े से बड़े प्रॉब्लम भी आपको बड़ी आसान लगेगी। अगर आपका वो जो एटीट्यूड है, आपका जो करेज लेवल है और आपका जो कमिटमेंट लेवल है वो अगर मेंटेन करोगे तो। सो आप जो पढ़ाई कर रहे हो, इट इज नॉट एट ऑल अ डिफिकल्ट फेज, इट इज रियली एन एंजॉयमेंट फॉर यू पीपल। यू प्लीज एंजॉय दिस स्टडिंग। आप
बिल्कुल इस चीज को, पढ़ाई करने के दौर को आप एंजॉय कीजिए, एंजॉय करते करते पढ़ाई कीजिए, इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। आपको रिलीव भी करेगा वो चीज। उस हम ये कोई भी आपको ये नहीं कह रहा है कि आपके कमिटमेंट में कोई कॉम्प्रोमाइज करो, नहीं। आपका आपके ऑब्जेक्टिव में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, आपके कमिटमेंट में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। whatever you are studying, yes, study it in a very enthusiastic manner, in a very happy manner। वो जितना आप खुश होकर खुशनुमा माहौल में उसको पढ़ोगे, वो उतना रिसीव होता रहेगा। और ये बात भी है कि अभी आप जो पढ़ रहे हो ना, एक बार ये चेयर पे बैठोगे तो बहुत ज्यादा काम नहीं आने वाला। वो केवल आपको एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए काम में आएगा। लेट मी टेल यू एन एग्जांपल। मुझे 10वीं में 150 में से वो अलजेब्रा, ज्योमेट्री वगैरह ये जो सब्जेक्ट्स थे, 150 में से मुझे 55 मार्क्स थे। और बड़ा बाउंड्री पर 2-3 मार्क्स से मैं पास हुआ हूँ 10th में। और मुझे इतना डर लगता था फिगर्स से, मैथ से, कैलकुलेशन से, सम से, प्रॉब्लम से, कि 10वीं के बाद मैंने कभी मैथ्स की तरफ देखा नहीं। मुझे अभी भी आंकड़े नजर आते हैं तो भैया means it means I get butterflies in my stomach। तो आंकड़ों से मैं दूर रहना चाहता था। प्रॉब्लम्स, सम्स, अरिथमेटिक्स, ये जो फिगर्स है, बड़ी बड़ी आंकड़े, लाखों करोड़ों के आंकड़े, इनसे मैं दूर रहना चाहता। और अल्टीमेटली मुझे कहां पर आना पड़ा? अल्टीमेटली मुझे वही डिपार्टमेंट में आना पड़ा जहां पर इतने बड़े फाइनेंसेस इन्वॉल्व है, इतने बड़े पैसे इन्वॉल्व है, जहां पर मुझे बैलेंस शीट भी बनानी पड़ती है, वर्कर्स के अकाउंट्स में कितना पैसा आया है, उन पर कितना इंटरेस्ट गया है, उनको हमने ठीक से रिलीज किया कि नहीं रिलीज किया। सो व्हाट हैज हैपेंड, I have met my fear once again when I entered this office of EPFO under Labor Ministry। So मैंने क्या किया? I accepted it। चलो भैया, अभी ये फिगर्स, अभी मेरे साथ ये बड़े बड़े आंकड़े मेरे साथ रहने वाले हैं, तो चलो इनको भी डील कर लेते, इनको एक्सेप्ट कर लेते। ऐसे नहीं है कि गलतियां नहीं होती। even at the time of conducting press conferences, अगर मुझे कोई फिगर पढ़नी है, वो प्रेस नोट से मैं उसको नंबर में नहीं लिखता हूं, मैं उसको अक्षरों में लिखता हूं, क्योंकि मुझे अभी भी डाउट है कि नंबर को मैं ठीक से पढ़ पाऊंगा या नहीं पढ़ पाऊंगा। आई राइट इट डाउन इन फिगर्स, इन वर्ड्स, नॉट इन फिगर्स। मैं वर्ड्स में लिख लेता हूं, सो दैट आई एम मेकिंग माई सेल्फ श्योर, आई एम मेकिंग माई सेल्फ वेरी क्लियर कि नहीं भैया आंकड़े यही है। सो ये सारी चीजें मैं इसलिए शेयर कर रहा हूं, एक बार जब आप ज्वाइन हो जाते हो, there is entirely a different set of problems which you have to deal with। okay, अभी कौन से प्रॉब्लम्स है जो आपको डील करने होंगे when you are in गवर्नमेंट सेटअप? आ जाए, जस्ट अ मिनट। हा, काही लोकांचे क्वेश्चन्स वगैरे आता तयार ठेवा, कारण आपण थोडस आपण आता क्वेश्चन याच्यावरती जाऊ, ठीक आहे? सो आता एक क्वेश्चन इथे, व्हॉट शुड बी एन ॲटिट्यूड ऑफ गव्हर्नमेंट ऑफिसर? श्रद्धा, हा, ऍटिट्यूड तुला काय एक्सपेक्टेशन आहे ऍटिट्यूडचं ते सांगशील, आणि नंतर मग व्हॉट शुड बी एन ऍटिट्यूड ऑफ गव्हर्नमेंट ऑफिसर। ओके, श्रद्धाचा प्रश्न आहे तर तो आपण डील करू। आता सर बोलतील त्याच्यावरती, मी बोललो असतो परंतु आता सरांच्या हातात दिलेला आहे तर ते बोलतील। कोणाचे आणखी काही क्वेश्चन्स असतील तर ते तयार ठेवा। ओव्हरऑल बऱ्याचशा गोष्टी डिस्कस करून झालेल्या आहेत। अच्छा, दोघेही आन्सर द्या। ऍटिट्यूड हा जो प्रकार आहे ना, म्हणजे ऍटिट्यूड म्हणजे तुझं एक्सपेक्टेशन काय श्रद्धा? व्हॉट शुड बी द ऍटिट्यूड ऑफ एन ऑफिसर? व्हॉट इज युअर एक्सपेक्टेशन? श्रद्धा, तुझं एक्सपेक्टेशन काय?
नवीन पेन्शनर ऍड झाले. In news, we are seeing migrant laborers are facing difficulties. What's your opinion on it? Okay, migrant laborचा प्रश्न आहे. ठीक आहे, migrant laborers. हा, एक एक घेऊ आपण. हा, what is your attitude? What तुझं काय ओरिएंटेशन आहे? What attitude you expecting? You are expecting. म्हणजे एखाद्या अधिकाऱ्याने त्याचं मत मांडताना स्वतःचे जे काही कमिटमेंट किंवा स्वतःबद्दल जे काही ठरवलेलं असतं ते बदलायचं का नाही, म्हणजे स्वतःचे त्याने जे काही नियम ठरवलेले असतात त्यांच्यासोबत किती कॉम्प्रोमाइज करायचं आणि किती नाही ते कसं ठरवायचं. जर ते कॉन्स्टिट्यूशनल याच्यामध्ये म्हणजे एखादी गोष्ट जी कॉन्स्टिट्यूशनल किंवा तुमच्या लॉज मध्ये आहे त्यानुसारच तुमचे डिसिजन मेकिंग असलं पाहिजे, आहे की नाही? आणि तोच तुमचा ऍटिट्यूड. म्हणजे तुम्ही जसं तुम्ही जर एखाद्याला कॉम्प्रोमाइज करत असाल एखाद्या मुद्द्यावरती तर मग तुम्ही तुमच्या जे काही पॉवर्स आहेत त्याला तुम्ही कॉम्प्रोमाइज करता. ठीक आहे. हेमंत, एका स्टुडंटचा क्वेश्चन आहे. हा प्लीज. हा, एका स्टुडंटचा क्वेश्चन आहे की व्हॉट शुड बी ऍटिट्यूड ऑफ ऑफिसर. आणि तिचं असं म्हणणं आहे की एखादा अधिकारी त्यांनी डिसिजन घेताना त्याच्या डिसिजन वरती फर्म राहिलं पाहिजे का की बदलायचे वगैरे, म्हणजे अशा पद्धतीचं आहे. श्रद्धा, तू परत एकदा सांग सरांना, सर उत्तर देतील. ठीक आहे. आणि आता आपण थोडेसे हेमंत आपण क्वेश्चन्स घेऊ, म्हणजे हा, म्हणजे यांचे पण थोडेसे हे होईल, दॅट विल बी बेटर. ते चांगलं राहील मग. ठीक आहे. हॅलो सर. हा बोल. सर, माझ्या मते म्हणजे आता कोणताही जर डिसिजन घ्यायचा असेल एखाद्या अधिकाऱ्याला तर त्याला वरूनही तेवढंच प्रेशर असतं आणि खालूनही प्रेशर असतं. तर मग ते ठरवताना त्याने जॉब लागण्याच्या आधी जे काही ठरवलेलं असतं त्या नियमानुसार काम करायला पाहिजे का कुठेतरी कॉम्प्रोमाइज करायला पाहिजे? एथिक्सचा प्रश्न झाला हा. तुम्ही जेव्हा पेपर सोडून राहिलेले आहात, तुमचा पेपर चेक करणाऱ्यांनी जर समजा मी तुमचा पेपर चेक करून राहिलेलो आहोत तर तुमचा पेपर मी सिन्सिअरली चेक करायला पाहिजे की माझ्या सिन्सिअरिटी मध्ये काही कॉम्प्रोमाइज करायला पाहिजे? सिन्सिअरली. एक्झॅक्टली. तुमची अपेक्षा आहे ना की तुमचा जो पेपर तुम्ही जो दिलेला आहे तो एकदम ऑनेस्टली चेक व्हायला पाहिजे, फेअरली चेक व्हायला पाहिजे, ट्रान्सपरंटली चेक व्हायला पाहिजे, जेणेकरून तुमचं असेसमेंट सुद्धा फेअर होणार. तशाच प्रकारे जेव्हा तुम्ही गव्हर्नमेंट ऑफिस मध्ये एंटर करता, लोकांकडून तुमच्या तशाच अपेक्षा असतात की तुम्ही सुद्धा त्यांचे कामं प्रामाणिकपणे कराल, त्यांच्यासाठी प्रामाणिकपणे डिसिजन घ्याल आणि त्यांच्या हिताचे डिसिजन्स घ्याल. जेव्हा तुम्ही डिसिजन घेता तेव्हा दोन गोष्टी तुम्हाला एका ऑफिसरला बघायच्या असतात. फर्स्ट, वेदर इट इज विदिन द लॉ प्रोव्हिजन, ज्या कायद्याचा तो एन्फोर्समेंट करत आहे. जसं आय एम एन्फोर्सिंग एम्प्लॉईज प्रॉव्हिडंट फंड अँड मिसलेनियस प्रोव्हिजन ऍक्ट, ज्या कायद्याला मी एन्फोर्स करून राहिलेलो आहोत, काय त्या लॉ प्रोव्हिजन्स मध्ये ती गोष्ट आहे. सेकंडली, पब्लिक इंटरेस्ट याच्यामध्ये इन्व्हॉल्ड आहे. हे दोन मोठे फॅक्टर्स असतात डिसिजन मेकिंग साठी. याच्यातून जर तुम्हाला वाटलं की हो ती गोष्ट लॉफुल आहे आणि ती पब्लिक इंटरेस्ट साठी आहे तर तुम्हाला ते डिसिजन घ्यायलाच पाहिजे, कुठलाही हेजिटेशन न ठेवता. याचा अर्थ काय की गव्हर्नमेंट डिपार्टमेंट मध्ये काम करताना नुसतं प्रामाणिक राहून नाही चालत. नुसतं प्रामाणिक राहून काम करणं हे सफिशियंट नाही आहे, तर तुम्हाला बोल्ड सुद्धा व्हावं लागते, तुम्हाला करेजियस सुद्धा व्हावं लागते. जर मी प्रामाणिक आहो परंतु कुठल्या प्रेशर खाली ते प्रामाणिक डिसिजन किंवा ते काम मी करून नाही राहिलेलो आहो तर माझ्या त्या ऑनेस्टीचा, माझ्या त्या इंटिग्रिटीचा काहीही अर्थ उरत नाही. सो ऑनेस्टी, इंटिग्रिटी, एफिशियन्सी should always be accompanied by courage and boldness. You should be courageous also, you should be bold also to go ahead with the decision which you have taken. Okay, let me give you an example. सोलापूरमध्ये मी 2017 पासून जॉईन झालो या ऑफिसमध्ये, प्रॉव्हिडंट फंड ऑफिसमध्ये. जसं मी तुम्हाला सांगितलं की इथं 60-70 हजार बीडी कामगार आहेत. बीडी कामगार जे मोस्टली
महिला आहेत ज्या बिडी तेंदूपत्ता जो असतो त्याला रोल करतात आणि त्याच्यामध्ये तंबाखू टाकतात. असे 60-70 हजार महिला आहेत जे काम करतात. ही एक मोठी इंडस्ट्री आहे सोलापूरची. दुसरी एक इंडस्ट्री आहे पॉवरलूम इंडस्ट्री. पॉवरलूम इंडस्ट्री कुणी सांगू शकेल पॉवरलूम काय आहे? तुम्हाला हँडलूम माहिती असेल? हँडलूम, पॉवरलूम. पॉवरलूम म्हणजे जे क्लोथ बनतं ते आपल्या मशीन्सनीच बनतं. ओके ओके. आणि जे हँडलूम होतं त्याच्यामध्ये आपल्याला म्हणजे मॅन्युअली हाताने पहिले थ्रेड्स लावावे लागायचे, म्हणजे क्लोथ बनावं लागायचं. राइट 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 राइट. इसमें क्या होता है, आपने सोलापुरी चादर ये सुना होगा. ये सोलापुरी चादर ये बहुत ही जिसको कहते हैं ब्रांड आइडेंटिटी है सोलापुर की, और मोस्ट ऑफ द प्रोडक्ट ये एक्सपोर्ट होता है. और ये जो सोलापुरी चादर है ये बनती है पावरलूम पे. एक होता है हैंडलूम, दूसरा होता है पावरलूम और तीसरा होता है ऑटोलूम. विवेक, आप जो बता रहे हो कि मशीन से कपड़ा बनता है, वो ऑटोमेटेड प्रोसेस और मशीन से कपड़ा बनता है जिसमें ह्यूमन लेबर की उतनी जरूरत नहीं होती है. वो ऑटोमेटिक लूम के थ्रू होकर वो कपड़ा बनता है, वो है ऑटोलूम. एक है हैंडलूम. हैंडलूम में किसी भी मशीन का यूज नहीं होता है, हम केवल अपने हाथ से ही उस कपड़े को बुनते हैं, उसकी वीविंग करते हैं. इन दोनों के बीच में, हैंडलूम और ऑटोलूम के बीच में होता है पावरलूम. इसमें मशीन्स जो होती है वो ऑटोमेटेड मशीन्स नहीं होती है, वो मशीन चलाने के लिए आपको पैरों का और हाथों का यूज करना होता है. ये जो है मैन्युअली ऑपरेटेड मशीन्स होती है. और ऐसी पावरलूम जो है, इस पावरलूम पर चलने वाले जो इंडस्ट्री है उसको पावरलूम इंडस्ट्री कहते हैं. और यही पावरलूम इंडस्ट्री सोलापुर की चादर बनाती है, सोलापुर के हैंड टॉवल्स बनाती है, लाइक दिस नैपकिन्स, व्हाट वी कॉल नैपकिन, हैंड टॉवल्स. अभी ये इंडस्ट्री में लगभग 40 से 50 हजार वर्कर्स है. और ये इंडस्ट्री यानी बहुत सालों से सोलापुर में शुरू है. 2017 में जब मैंने यहाँ पे ज्वाइन किया तो मैंने देखा कि इन वर्कर्स को ये जो मेरा कानून है, मेरा लॉ जो है एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड एक्ट, इन वर्कर्स को ये लॉ अप्लाई नहीं हुआ है. ये मेरे कानून के जो बेनिफिट्स है, ये सोशल सिक्योरिटी लॉ जो होता है, ये प्रोविडेंट फंड के बेनिफिट्स इनको नहीं दिए जा रहे हैं, ये पेंशन के बेनिफिट्स इनके फैमिलीज को नहीं दिए जा रहे हैं. और ये इंडस्ट्री बहुत सालों से है उसके बावजूद भी, और 40 से 50 हजार लोग हैं इस इंडस्ट्री में. सो मेरे ज्वाइन होने के कुछ महीने के बाद थोड़ा बहुत जितना भी मुझे लीगल वर्क करना था, पेपर वर्क करना था, एक जुडिशियल इंक्वायरी, क्वाजी जुडिशियल इंक्वायरी कंडक्ट करनी थी, वो इंक्वायरी कंडक्ट की. मेरे इंस्पेक्टर्स और असिस्टेंट कमिश्नर्स के थ्रू कुछ इन्वेस्टिगेशन करवाए, स्टडी रिपोर्ट्स बनवाए. जितने भी इंडस्ट्री के ओनर्स थे उनसे मुलाकात की, उनको बुलाया. जो वर्कर यूनियंस थे उनको बुलाया, उनसे बातचीत की और उनको ये समझाया कि आपकी ये जो इंडस्ट्री है इस पर ये मेरा ईपीएफ लॉ जो है ये लीगली एप्लीकेबल है, और अभी ये कानून आपको अप्लाई करना होगा और आपके जो वर्कर्स है उनको ये बेनिफिट्स देने होंगे. ये मैंने मेरी तरफ से समझाने की 6 महीने कोशिश की उन इंडस्ट्री ओनर्स को, इंडस्ट्रियलिस्ट को. ये करने के बावजूद भी वो राजी नहीं हुए, तो मैंने मेरी एक ऑर्डर पास की कि किस तरह से ये कानून इस इंडस्ट्री पे लागू होता है और वर्कर्स किस तरह से इसको बेनिफिट हो सकते हैं. और मैंने ये कानून उस इंडस्ट्री पे लागू कर दिया. अभी हुआ क्या, उस इंडस्ट्री ओनर्स ने पूरा का पूरा शटडाउन कर दिया, स्ट्राइक कर दी, शटडाउन कर दिया. सारे के सारे वर्कर्स जो है वो पूरा 1 महीना तक जो है काम बंद रहा. वहां पर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन हो गई.
सारे वर्कर्स काम करने के बजाय रास्ते पर प्रोटेस्ट कर रहे थे, उधर जो ओनर्स है, इंडस्ट्री ओनर्स जो है, वो भी मेरे अगेंस्ट में रास्ते पर प्रोटेस्ट कर रहे थे कि मैंने ये कानून उन पर क्यों लगाया। बात जो है स्टेट गवर्नमेंट के जो फंक्शनरीज होते हैं वहां तक पहुंची। स्टेट गवर्नमेंट के यहाँ के जो लेबर मिनिस्टर थे तब उन्होंने इंटरवेन किया, उनको भी मैंने समझाने की कोशिश की कि इस तरह से ये लॉ अप्लीकेबल है। शुरुआत में उनको भी ऐसा लगा कि मैंने ये गलत किया, लेकिन आगे चलकर जितने भी इसमें मिनिस्टर्स इन्वॉल्व रहे और जिनको ये बात समझ में आई, शुरुआत में जो मेरे इस डिसीजन से नाखुश थे, कुछ दिनों के बाद उनको रियलाइज हुआ कि हाँ, कि ये जो डिसीजन है ये अच्छा है, लेकिन ये अप्लीकेबल है, ये लीगल भी है और इससे 40-50 हजार वर्कर्स जो है उनको बेनिफिट हो रहा है। लेकिन इसी प्रोसेस में ये ना करने के लिए भी मुझे फोन आते थे। बड़े सिंपल है कि जितना भी आपके पास कम्युनिकेशन आता है, आप वो कम्युनिकेशन को एक्सेप्ट ना करें, स्वीकार ही ना करें, ताकि बोलने की जरूरत ना हो। The best way is to switch off your mobile or not to answer any calls from the number which is not recorded in your phone book. इससे ये होता है कि आधा से ज्यादा प्रॉब्लम्स जो है, आधे से ज्यादा पॉलिटिकल प्रेशर को आपको डील नहीं करना होता। बाकी जो पर्सनली फिजिकली आपके ऑफिस में आकर मिलते हैं तो उनको आपको लॉ प्रोविजन समझानी होती है, पब्लिक इंटरेस्ट में ये किस तरह से फिजिबल डिसीजन है ये समझाना होता है। उसके बावजूद भी वो इंडस्ट्री ओनर्स कोर्ट में गए मेरे डिसीजन के अगेंस्ट में, और 1 साल के बाद कोर्ट ने भी मेरे फेवर में डिसीजन दिया और वो लॉ अप्लीकेबल है इस तरह की ऑर्डर पास कर। नाउ द स्टेटस इज, आज जितनी भी ये पावरलूम इंडस्ट्री सोलापुर में है उस पर ये लॉ लागू मैंने कर दिया है और धीरे धीरे उन वर्कर्स के प्रोविडेंट फंड अकाउंट्स ओपन कर रहे हैं और उनमें उनका हर मंथ का जो कुछ भी थोड़ा सा फंड होता है उनके आगे के भविष्य के लिए हम जमा कर रहे हैं। अभी ये जो जिस किसी लड़की ने मुझे सवाल पूछा था, ये बात आप पर डिपेंड होती है कि आप कितने करेजियस है आपका डिसीजन लेने के बाद उसको अमल करने के लिए। एक होता है डिसीजन लेकर छोड़ देना, दूसरा होता है उस डिसीजन को पूरे जोर से लागू करना, इफेक्ट करना, एनफोर्स करना। नाउ इसमें यानी हर कोई, यानी मेरी वाइफ या मेरे फैमिली मेंबर्स, मेरे फ्रेंड्स, इवन मंगेश ने कई बार मुझे उस दौर में फोन करके वो मुझे मेरे हाल चाल पूछता था, मैं ठीक ठाक हूँ कि नहीं ये मुझे पूछता था। यानी ये सारे कंसर्न्स होते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी यू हैव टू स्टिक अप विद द डिसीजन। यानी ये डिसीजंस आपके जो है उसके लिए जो स्टेट महाराष्ट्र विधान सभा जो है वहां पर भी ये क्वेश्चंस पूछे गए। ये लॉ जो इम्प्लीमेंट हुआ सोलापुर के पावरलूम इंडस्ट्री पे, तो मुझे विधानसभा में भी वो आंसर करने के लिए बुलाया गया था, मुझे जाना पड़ा। सेकेंडली, मेरी जो सेंट्रल गवर्नमेंट की मिनिस्ट्री है, लेबर मिनिस्ट्री, वहां से भी मुझे बुलाया गया कि भैया इतना वहां पर प्रॉब्लम क्यों क्रिएट हो गई है, ऐसा क्या कर दिया तुमने। सो आई वॉज कॉल्ड इन दी दिल्ली मिनिस्ट्री, माय joint secretary who is sitting in the labor ministry, he also wanted to know about this issue. जब सेक्रेटरी मैडम को ये इशू पता चला और उन्होंने जब सब कुछ देखा तो she just said कि जो कुछ भी हो रहा है it is within the law and you take decisions within the law framework. So ऐसा नहीं है कि आपको सपोर्ट करने वाले अच्छे ऑफिसर्स नहीं मिलते। डेफिनेटली बहुत अच्छे ऑफिसर्स है सिस्टम में जो अच्छे डिसीजंस को सपोर्ट करते हैं, अच्छे ऑफिसर्स को सपोर्ट करते हैं। सिस्टम किसी और से नहीं बनती, सिस्टम आप और मेरे से बनती है। अगर मैं अच्छा हूं तो सिस्टम अच्छी बन जाती है, अगर मैं खराब हूं तो सिस्टम खराब बन जाती है। इट इज अप टू अस। सिस्टम कोई आकाश से गिरी नहीं है, हमने सिस्टम को बनाया है।
अगर हमने सिस्टम को बनाया है तो हम ही सिस्टम को ठीक कर सकते हैं, उसको हेल्दी बना सकते हैं और उसको पब्लिक ओरिएंटेड, पीपल ओरिएंटेड बना सकते हैं. सो it is means I would like to see more constitutionally spirited people, more constitutionally honest people in the government setup to work for the people, to fight for the people, and to implement all the constitutional rights which the people deserves. I think, Mangesh, we have our next speaker with us, Dr. Sanjay ji. From Haryana. I think I should stop myself. Thank you all for staying with me. नाही काही नाही Thank you, Mangesh. संजयला One more thing I would like to say to our honorable Young Tripodi sir. I think so. After a long time, I'm listening to Hemant Tripodi sir, and they are serving to our Solapur district. Thank you, sir. Thank you very much. Very good job. I was listening about the history, story of the Solapur, about the problems of the laborers and whatever you done the efforts. I'm really appreciate about that. Thank you. Sanjay is basically from Solapur. Oh, great. Great. Dr. Sanjay is basically from Solapur. Okay. हा संजय तुझा माईक थोडा करेक्ट करशील कारण आवाजचा थोडासा मला इश्यू वाटतो संजय. ठीक आहे. हा अच्छा एनी मोर क्वेश्चन टू डॉक्टर हेमंत सर. एनी मोर क्वेश्चन फ्रॉम स्टुडंट्स. सर माझा क्वेश्चन आहे. रुपाली बोलते. हा रुपाली बोल. हा मी हा जो पण डिसिजन केला तुम्ही मेथड वगैरे सांगितलं पण तुम्ही त्यावेळेस स्वतःला कसं प्रिपेअर केलं. मी कसं आहे की कधी कधी स्वतःवरचा विश्वास कधी कधी डगमगतो सर. कुठची कंडिशन असतो ते. तर तुम्ही त्यावेळेस स्वतःला कसं तो टॅकल केलं. मॅडम, इट इज नॉट लाईक दॅट. आपण माहित आहे का, आपण जेव्हा आपल्याला विश्वास असतो की आपण बरोबर आहोत तेव्हा आपल्याला कुठलाही हेजिटेशन माइंड मध्ये नसते. जेव्हा आपण खुद कन्व्हिन्स झालेलो आहोत की व्हॉट वी आर डुईंग इज विदिन द लॉ फ्रेमवर्क अँड इट इज इन द पब्लिक इंटरेस्ट, त्याच्यानंतर तुमचा तो जो विश्वास आहे तो कुणीही तोडू शकत नाही आणि तुम्हाला कुणीही त्याच्यापासून परावृत्त करू शकत नाही. It is neither the fear nor the force which will work once you have arrived at your own conclusion. Secondly, government officers have nothing to fear about because for all their decisions they are protected in the court of law. अगर मैंने पब्लिक इंटरेस्ट में डिसीजन लेने के लिए अगर मुझसे कोई गलती भी हो जाती है तो भी मुझे लॉफुली प्रोटेक्शन मिलता है. लेकिन हम सभी लोग ये बात की पुरजोर कोशिश करते हैं कि वी आर वेरी क्लियर ऑन द लॉ ग्राउंड्स एंड सेकेंडली वी वेरी वेल टेक केयर ऑफ द पब्लिक कंसर्न्स. एक बार ये दो क्राइटेरिया फुलफिल हो जाता है तो आपको हेजिटेट होने की कोई भी जरूरत नहीं है. आप जो कहते हैं ना कि एक बार अगर आपने कमिट कर लिया तो आपने अपनी भी नहीं सुनना है. यस, डेफिनेटली यू नीड नॉट टू लिसन टू योरसेल्फ व्हेन यू हैड मेड अ राइट डिसीजन. ग्रेट. सर मेरा एक क्वेश्चन था वो मैंने पूछा था. एक क्वेश्चन पूछना है सर. कोण आदित्य. हा आदित्य. सर तुम्ही बोलला की तुम्ही वेलफेअर साठी काम करता लेबरच्या. तर मग आता जी करंट सिच्युएशन आहे इंडियामध्ये लेबर जे फेस करतायत की त्यांना घरी जायला भेटत नाहीये. काही बोलतात की गव्हर्नमेंट काम करत नाहीये. बघते तर काही सेलिब्रिटीज काम करतायत. तर त्याच्यावरती काय ओपिनियन आहे तुमचं. म्हणजे तुमची जी डिपार्टमेंट आहे कसं हेल्प करते त्यांना. येस लेट मी टेल यू या एंटायर लॉकडाऊन पिरियड मध्ये माझं ऑफिस सुरू होतं. वी वर डेझिग्नेटेड ॲज इसेन्शियल सर्व्हिसेस अँड माझं ऑफिस सुरू होतं म्हणजे माझी जी टीम आहेत, माझे जे 10-15 लोक आहेत जे आताही काम करून राहिलेले आहेत, हे मागच्या 2 महिन्यापासून अविरत काम करून राहिलेले आहेत. आता जेव्हा इसेन्शियल सर्व्हिसेस म्हणून डिक्लेअर केलेल्या जाते तेव्हा इट इज बाउंड टू अस टू एक्सटेंड ऑल दी सर्व्हिसेस टू दी वर्कर्स. ह्या पिरियड मध्ये गरजेचं होतं की कामगारांच्या हातामध्ये त्यांना पाहिजे तो पैसा मिळावा. आणि याच्यासाठी हे 2 महिने आम्ही तिथं ती सर्व्हिस डिलिव्हरी सुरू ठेवली. अँड आय थिंक ड्युरिंग दिस प्रोसेस we have disbursed more than
20 crores of rupees to the workers. Great. Secondly, let me tell you, there is also a labor commissioner in Solapur itself who is doing wonderful job. तो पण म्हणजे ते पण MPSC ची परीक्षा देऊन आलेले आहेत आणि त्यांनी सुद्धा या लॉकडाऊन पिरियड मध्ये ज्या ज्या कंपन्यांनी कामगारांना वेजेस दिले नाही, त्यांची मजुरी दिलेली नाही आहे, त्यांच्यावर कारवाई करण्यासाठी नोटिसेस काढू अशा प्रकारचा इशारा दिलेला होता. So the labor commissioner office working under state government and the EPFO office working under central government, we both were doing our duties at that time. तर हे जे आहे आज चित्र बदललेलं आहे. जेव्हा ऑफिसेस मध्ये डिपार्टमेंट्स मध्ये कॉन्स्टिट्यूशनली स्पिरिटेड आणि ऑनेस्ट ऑफिसर्स येतात तर जे काही एक्सपेक्टेड आहेत म्हणजे कागदावर जे किंवा लॉ बुक्स मध्ये जे लॉज आहेत ते अनलेस अँड अंटिल तुम्ही एन्फोर्स करत नाही त्याचा काहीही फायदा होत नाही. लेबर कमिशनर जे आहेत ते कमीत कमी 15 ते 20 कायदे इम्प्लिमेंट करतात. मी फक्त एकच कायदा इम्प्लिमेंट करतो. ही हॅज मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी दॅन मी. आता हे रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्झिक्यूट करणारे ऑफिसर्स, जास्त कमिटेड ऑफिसर्स, जास्त इंटिग्रिटी असणारे ऑफिसर्स जेवढे तुमच्यामधून येतील तेवढे वर्कर्स जास्त बेनिफिट होत राहतील. सर आता रिसेंटली एक मी बघितलेलं कर्नाटकात जे होते IAS ऑफिसर त्यांची ट्रान्सफर केली. ते लेबरसाठी काम करत होते, त्याची ट्रान्सफर अॅनिमल हजबंड्री मध्ये केली. म्हणजे हे काय ते काम तर बरोबर करतात बट गव्हर्नमेंट नाही का जे मिनिस्टर वरचे आहेत ते सपोर्ट नाही करत त्यांना. नो इश्यूज. ट्रान्सफर इज नॉट ए पनिशमेंट. न ट्रान्सफर म्हणजे पनिशमेंट नाही सर, म्हणजे ते काम करत आहेत लेबरसाठी बट त्यांची ट्रान्सफर अॅनिमल हजबंड्री मध्ये केली. राईट. त्यांच्या जागी कुणी आणखीन दुसरा चांगला ऑफिसर येईल आणि तो ते काम कंटिन्यू करेल. let us create so many officers, let us create so many good officers, so many honest officers की कितीही बदल्या हो चांगल्या ऑफिसर्सची कमी नाही राहिली पाहिजे. एक ऑफिसर गेला तर दुसरा ऑफिसरने त्याला रिप्लेस केलंच पाहिजे. आणि हे कुठून होईल? हे जोपर्यंत त्या डेडिकेशनची मुलं मिळतील नाही की जे गव्हर्नमेंट जॉबला जॉब म्हणून नाही पाहतील, असे मुलं जोपर्यंत या सिस्टीम मध्ये येतील नाही तोपर्यंत आपल्याला तेवढ्या नंबर्सनी ऑफिसर्स मिळणार नाही. राईट नाव वी आर इन मायनॉरिटी. चांगले ऑफिसर्स, कमिटेड ऑफिसर्स, बोल्ड ऑफिसर्स हे मायनॉरिटी मध्ये आहेत. आपल्याला या मायनॉरिटीला मेजॉरिटी मध्ये कन्वर्ट करायचं आहे. अँड इट विल बी बिकमिंग इफ स्टुडंट्स लाईक यू, इफ youth like you will be coming forward and taking these positions in the government. That's why we are working, no? That's why we are working. That's why our mission is going on. Okay, so है ना, म्हणजे जे काही मिशन आपण घेतलंय हातामध्ये सिन्स म्हणजे हेमंत सरांनी आता जे अनेक गोष्टी ज्या सांगितल्या, सो त्याच्यामध्ये त्यांनी मगाशी बोललं की when we were together at Nagpur SISC, so I took a decision to start this mission Prashashak Bano Abhiyan. Okay, in 2004 itself when I appeared for interview of UPSC Central Police Forces. Okay, so our mission is to produce that kind of officer because only Dr. Hemant and few other officers, they cannot change the scenario. म्हणजे सिनेरियो जर चेंज करायचा असेल तो you should adopt a spirit of constitutionalism. You should adopt a spirit of value system, moral values. आणि whatever Dr. Hemant is doing in his jurisdiction of this EPFO, so he is doing a wonderful job. म्हणजे okay, तर त्याच्यामुळे कसं आहे की we are expecting good officers from you people, and that's why we are dedicating our time. That's why we are we are giving more and more time to the students so that they can become IAS officers, IPS officers, EPFO officers and officers of the so many departments. So हमारा जो काम है, हमारा जो मिशन है वही है कि अच्छे अच्छे जो स्टूडेंट्स है, आपके जैसे जो स्टूडेंट्स है, अभी आप लोग क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, तो आप लोग जो क्वेश्चंस पूछ रहे हैं तो आपके दिमाग में कुछ ना कुछ है, मतलब एक आप अभी काफी एथिकल हो, आपके दिमाग में कुछ ना कुछ अच्छी बातें हैं. इन अच्छी बातों को आप लोग कंटिन्यू रखिए. ऐसा नहीं कि आज हमारे दिमाग में बहुत अच्छी आइडियाज है, क्रिएटिव आइडियाज है और हम सिस्टम के बाहर है तो हम सिस्टम को पॉइंट आउट कर रहे हैं कि ऐसा नहीं हो रहा है, वैसा नहीं हो रहा है, लेबर के प्रॉब्लम्स है. लेकिन जैसे अभी हेमंत सर ने कहा और बाकी के भी काफी सारे ऑफिसर्स अच्छा काम करते रहते हैं. सो ये देखिए कि वो लोग भी किस कंडीशंस में काम करते हैं.
तो हमें जैसे अभी हेमंत ने कहा कि माइनॉरिटी में हम मतलब मेजॉरिटी ऑफ द ऑफिसर्स शुड बी लाइक दैट, दे शुड हैव दैट कॉन्स्टिट्यूशनल स्पिरिट, दे शुड हैव दैट एथिक्स। किसी भी सिचुएशन में हमें सरेंडर नहीं करना है किसी प्रेशर को। और वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट विच इज एंश्राइंड इन अवर कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, सो ये जो हमारे संविधान का जो वेलफेयर स्टेट का जो कंसेप्ट है ना, जो सम्राट अशोक के जमाने से है, तो उसी वेलफेयर स्टेट को हमें फिर से एस्टेब्लिश करना है। And that is a mission of Sambodhi Career Academy also. That's why I have left so many things. I left my that time career also. I could have been at the highest position. Okay, I could have been at commissioner level right now, but I left everything and I started this mission for creating good officers, ethical officers. So you need to join this mission. You need to enter and you need to focus your entire capacities, entire your whatever strength, and you need to change this system. तुम्हालाच ही सिस्टम जी आहे ती बदलावं लागणार आहे. एनिवेज डॉक्टर हेमंत यांनी खूप चांगलं आता मार्गदर्शन तुम्हाला केलेलं आहे. सब लोगों को बहुत ही अच्छा जो मार्गदर्शन है, हमारे जो दोस्त है हेमंत ने बहुत अच्छे से मार्गदर्शन किया है. लास्ट 2006 से जैसे सिलेक्शन के बाद जब मेरा इंस्टीट्यूशन काला चौकी में था, कॉटन ग्रीन मुंबई, सो ही विजिटेड दैट सेंटर आल्सो, then at many other places, at Thane recently he delivered his session. So many sessions he delivered at Sambodhi. काफी टाइम निकाल के वो स्टूडेंट्स को गाइड करते हैं. अभी हमारे पास ऑनलाइन की अपॉर्चुनिटी है. सो थैंक्स टू द टेक्नोलॉजी ऑल्सो, विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी आई कैन कनेक्ट डॉक्टर हेमंत विथ यू पीपल. और काफी अच्छा काम वो करते हैं. सो काफी सारे एंगल्स से डिस्कशन हुआ. आज का जो डिस्कशन हुआ उसमें काफी सारे एंगल्स थे. हेमंत का कहते थे. ओके, सो काफी सारे उसमें हेमंत का करना हाई कर. ओके, सो काफी सारे डिस्कशंस हुए, जैसे एथिक्स इन एडमिनिस्ट्रेशन, अपॉर्चुनिटीज प्राइवेट जॉब्स में और पब्लिक सेक्टर में या फिर गवर्नमेंट जॉब्स में क्या फर्क है, डिसीजन मेकिंग क्या चीज होती है. ओके, गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉयज है या गवर्नमेंट के जो ऑफिसर्स है, जैसे टॉप मोस्ट ब्यूरोक्रेट्स है, वो क्या डिसीजंस ले सकते हैं. अगर आप प्राइवेट में जाते हो तो हो सकता है कि पेमेंट बहुत अच्छी हो. कुछ जो वाइस प्रेसिडेंट लेवल के या बहुत अच्छे मल्टीनेशनल कंपनीज में जो लोग होते हैं उनका पेमेंट ज्यादा हो सकता है. लेकिन पर्टिकुलरली इफ यू कम टू द डिसीजन मेकिंग, जो गवर्नमेंट के अंदर में आते हैं सारे डिपार्टमेंट्स, वहां पे अगर आप टॉप मोस्ट पोजिशंस पे हो तो आप लोगों के भले के लिए, फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल आप काम कर सकते हो. ओवरऑल जो हमारा जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन था, जिसमें थोड़ा सा डिफरेंशिएशन प्राइवेट जॉब्स एंड हाँ बेटा था गवर्नमेंट जॉब्स, फिर उसके बाद ये जो टॉप मोस्ट अपॉर्चुनिटीज हमें मिलती है जिसके माध्यम से हम डिसीजन ले सकते हैं और वेलफेयर कर सकते हैं, उसके बारे में भी बातचीत हुई. अंडर प्रेशर है ना, लोअर से या फिर ऊपर से पॉलिटिकल प्रेशर हो या फिर ऑफिशियल स्टाफ का प्रेशर हो या बाकी जो एलिमेंट्स होते हैं, उस प्रेशर को किस तरह से डील करना चाहिए, किस तरह से हैंडल करना चाहिए, किस अप्रोच से हमने एडमिनिस्ट्रेशन को देखना चाहिए, इसके बारे में भी काफी सारी बातचीत हुई. सो आई थिंक सो मेनी ऑफ क्वेश्चंस, बिकॉज कल जो हमने बात की थी विशाल सर थे, विशाल क्षीरसागर, जो सोलापुर में सुपरिंटेंडेंट है चैरिटी कमीशन में, उन्होंने भी आपसे डिस्कशन किया. उन्होंने भी काफी सारा विद रिस्पेक्ट टू प्रिपरेशन के बारे में आपको बताया था, यूपीएससी, एमपीएससी और इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट लेके. फिर डॉक्टर तोशाबा शिंदे जो इंडियन रेलवे पर्सनल सर्विसेज में है पुणे डिवीजन के, वो अभी सीनियर डिविजनल पर्सनल ऑफिसर है. उन्होंने भी विद रिस्पेक्ट टू प्रिपरेशन के बारे में आपसे बात की थी, किस तरह से डिफरेंट डायमेंशंस है यूपीएससी प्रिपरेशन के, आईएएस वगैरह किस तरह से बनना चाहिए. ओके, और आज का जो हमारा सेशन आज 15 जून 2020 है, और अभी संबोधि करियर एकेडमी के ऑन बिहाफ ऑफ संबोधि करियर एकेडमी ठाणे मुंबई, हेमंत तिरपुड़े सर, जो प्रेजेंटली ही इज वर्किंग एट द कैपेसिटी ऑफ रीजनल प्रोविडेंट फंड कमिश्नर ऑफ सोलापुर रीजन. सो उन्होंने भी बहुत काफी सारी बातें आपके साथ डिस्कस की है. सो आई थिंक यू हैव गॉट so many inputs with respect to, not only with respect to preparation but with respect to the future vision also. म्हणजे तुम्हा लोकांना फक्त
प्रिपरेशनच्या संदर्भातच नाही तर तुम्हाला तुमची पर्सनॅलिटी कशी असली पाहिजे, तुमचं एथिक्स कसं असलं पाहिजे, तुमचं पोटेन्शियल कॅपॅसिटी कशी असली पाहिजे आणि किती फर्मनी तुम्ही काम केलं पाहिजे लोकांच्या भल्यासाठी, लेबर्स असतील किंवा सर्वसामान्य जो या देशातील नागरिक आहे, सिटीजन्स ऑफ इंडिया, बिकॉज अल्टिमेटली वी द पीपल ऑफ इंडिया, राइट? सो हम काफी बातें करते रहते हैं, सोशल जस्टिस, पॉलिटिकल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस, लेकिन ये केवल बातें करने से नहीं आता, इसके लिए हमें सिस्टम में जाके उस सिस्टम को चेंज करना बहुत जरूरी है और इसीलिए हमें कॉन्स्टिट्यूशनल स्पिरिट भी हमें डेवलप करना है. So thank you very much, Hemant, for giving this nice talk to all the students of Sambodhi Career Academy. And any further message with respect to preparation, dedication, किस तरह से उन्होंने preparation करना चाहिए, एक message उनको दे दो, उनका dedication, because generally students की mentality होती है कि 1 साल में preparation करो, 2 साल में preparation करो, बीच में छोड़ दो अगर कुछ नहीं होता है. So उसके बारे में एक लास्ट थोड़ा सा ये करके फिर हम इस सेशन को कंक्लूड करते हैं. नेक्स्ट सेशन हम डॉक्टर संजय से स्टार्ट करेंगे. अगर आपने ये सोच बना रखी है कि यू हैव टू बिकम अ पार्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, पार्ट ऑफ गवर्नमेंट सर्विस, देन आई थिंक जितने अर्ली आपने ये डिसीजन लिया है या जितने अर्ली ये जानकारी आपके पास पहुंच रही है, उतने अर्ली आपने उसको यूटिलाइज करना चाहिए अपने आप को काबिल बनाने के लिए, अपने आप को प्रिपेयर करने के लिए. डोंट वेस्ट योर टाइम. मैंने गलती की है, मेरे 5 साल यानी मीन्स आई एक्सपेक्ट दैट पीपल और स्टूडेंट शुड एंटर इनटू द एडमिनिस्ट्रेशन at the most till the age of 24, not beyond 24. At the age of 24 तक मुझे लगता है कि स्टूडेंट्स ने प्रिपेयर करना चाहिए, अपने आप को काबिल बनाना चाहिए. डोंट वेस्ट मोर इयर्स, और जितने जल्दी हो सके उतने जल्दी आप प्रिपरेशन शुरू करो. यानी ग्रेजुएशन के अगर एंड में अगर मुझे पता चलता है कि वी नीड टू प्रिपेयर फॉर सिविल सर्विसेज, अगर किसी को आज 10वीं में पता चल रहा है या 8वीं में पता चल रहा है, तो मुझे लगता है कि ही इज एट ए कटिंग एज. तो आपसे भी अगर कोई छोटे होंगे तो हमें उन्हें भी ये ओरिएंटेशन बताना होगा, एक्सपोज करना होगा उनको. हमारे आजू बाजू में देखिए, ये जो हमारा कंप्लेनिंग एटीट्यूड है ना कि भैया ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स खराब होते हैं, गवर्नमेंट स्कूल्स खराब होती है, ये वाला जो है, ये वाला हम ही लोग ठीक कर सकते हैं. अगर हमें दिक्कत है उन चीजों से, वो स्कूल ठीक नहीं है, वो हॉस्पिटल ठीक नहीं है, तो हमने जिम्मेदारी लेनी है उसको ठीक करने की. अगर ये जज्बा है तो स्टार्ट एज अर्ली एज पॉसिबल एंड द एडमिनिस्ट्रेशन विल बी वेटिंग फॉर यू. थैंक यू. हाँ, थैंक यू वेरी मच. हाँ, so I think there is no more question to Dr. Hemant now. जेवढे काही क्वेश्चन्स होते ते आपण ऑलमोस्ट डिस्कस केलेले आहेत आता. आणि हेमंत कंटिन्यू करणार आहे की कसं? नाही, मी माझा क्लोजिंग डाऊन आहे. स्टाफ सुद्धा आता मला स्टाफला ऍड्रेस करावा लागेल. सो आय विल जस्ट टेक अ लीव फ्रॉम ऑल ऑफ यू. Dr. Sanjay ji, we will be in touch. I will get your number from Mangesh ji. Yes, sir. Definitely. After 2 months, I am there only after completion of my distance program. Great. I would love to meet you in my office. Yes, sir. Yes, definitely, sir. Thank you, sir. Okay. Thank you. Thank you very much. Thank you very much, dear Hemant. Okay, bye. Take care.